A very healthy and refreshing good morning to everyone. This is Ratna and today we are going to discuss divisibility rule. So let's get started. Very first we are having divisibility by 2 and by 3. So let's go with divisibility by 2 first. So a number is divisible by 2 if its unit digit is any of 0, 2, 4, 6, 8. कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक डिजिट होगा. यूनिट डिजिट मीन्स वंस की प्लेस पे. सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2. एग्जाम्पल 42, 246, 20, 100, 108. Okay. And one example I have written here, this 67,98,512. So the number containing 0, 2, 4, 6, 8, any of the digit at its units place, that number is divisible by 2. Okay, now come for divisibility by 3. A number is divisible by 3 if sum of its digit is divisible by 3. Suppose I am having a number 123 and I have to check the number is divisible by 3 or not. So what I have to do, I have to find the sum of the digits, sum of its digit. So the sum means, yes, we have to perform addition and the digits are 1, 2 and 3. So 1 plus 2 plus 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. Is 6 divisible by 3? 3 ones are 3, 3 twos are 6. Yes, 6 is divisible by 3. It means the number 123 is divisible by 3. Okay, the number 123 is divisible by 3. 3 के लिए क्या करना है? You have to find out the sum of the digits. If the sum is divisible by 3, means the whole number is divisible by 3. Okay, see here I have written an example, 1,23,456, and I have to check whether the number is divisible by 3 or not. So I found first what we have to do, I find out the sum of its digit, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, and the sum is 21, and 21 is divisible by 3. It means 1,23,456 is also divisible by 3. Okay, now let's move for divisibility by 4. Last two digit is divisible by 4. If the last two digit of any number is divisible by 4, means the whole number is divisible by 4. See here we are having an example, 9,312. So 9,312 is divisible by 4 or not? So last two digit of 9,312 is 1, 2, 12. Is 12 divisible by 4? Yes, it is divisible by 4 up to 3 times. So we can say that 9,312 is also divisible by 4. 4 के लिए आपको यही करना है, लास्ट टू डिजिट चेक कर लेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. अगर लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब कि नंबर भी 4 से डिवाइड होगा. Okay, that's it. Now move for divisibility by 5 and by 10. So first we'll go with the 5. So for 5, what would you check? If the last digit is 0 or 5, the number which contains 0 either or 5 at its units place, ऐसे जितने भी numbers जिनके unit place पे या तो 0 है या फिर 5 है, that numbers are divisible by 5. Examples I have listed here, 40, 145, 1330, 14,255. Okay, all the numbers are containing either 0 or 5 at its units place. Now the question comes, what if I want to divide a number 551 by 5? Is it completely divisible by 5? See, the unit digit of this number is 1. So the number is not completely divisible by 5. ओके, अगर आप पॉइंट्स में या डेसिमल में इसको डिवाइड करेंगे डेफिनेटली होगा, बट
जो हमारा नॉर्मल डिवीजन होता है जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है विदाउट यूजिंग डेसिमल, वैसा डिवीजन यहाँ परफॉर्म नहीं होगा. वाई? बिकॉज द नंबर डोंट हैव 0 और 5 एट इट्स यूनिट्स प्लेस. 5 के लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी है, या तो नंबर के पास 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए एट इट्स यूनिट्स प्लेस. ओके, देन ओनली द नंबर इज completely divisible by 5. Now for 10, come for the 10. If the last digit is 0, any number contains 0 at its units place, that number is divisible by 10. ऐसे जितने भी नंबर्स 10 के लिए सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, ऐसे जितने भी नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है, that number is divisible by 10. Okay, like 2440, 2850, 36,980, इन सब के यूनिट प्लेस पे, वंस की प्लेस पे क्या है? 000 है. So these are divisible by 10. Okay, now student observe here, 0 is common between 3 numbers. 0 जो है वो 3 numbers के बीच में common है. First is 2, second is 5 and the third one is 10. The number contains 0 at its units place. That numbers are divisible by 5 also, 2 also, as well as from 10 also. ठीक है, तो 0 के लिए ये 3 numbers common है, या ये 3 numbers के divisibility rule में 0 is the value which is common. ठीक. Now move for divisibility by 6. Must be divisible by 2 and by 3. What does this mean? This means the number is divisible by 2 and 3 both. Only that numbers are divisible by 6. अगर ऐसा कोई नंबर है जो 2 या 3 इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड होता है और दूसरे से नहीं होता है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है. ओके, एग्जाम्पल इज 375 डिविजिबल बाय 6? सो very first check it by 2, then check it by 3. So 2 के लिए क्या करना है? We have to check at the units place 0, 2, 4, 6, 8. क्या इनमें से कोई एक डिजिट है 375 के पास at its units place? No. So this number is not divisible by 2. Now 6 के लिए क्या करना है? We have to find out the sum of its digit. So 375 के डिजिट्स हैं 3 plus 7 plus 5. 7 plus 3, 10, 10 plus 5, 15. Is 15 divisible by 3? Yes, it is divisible by 3 up to 5 times. So 375 जो है सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा. 375 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. 6 से डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि नंबर जो है वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो. एग्जाम्पल यू कैन टेक 24. 24 सी यूनिट डिजिट पे 4 है, इट मीन्स कि 2 से डिवाइड होगा. नाउ 4 plus 2 इज 6. 6 comes in the table of 3, it means कि 3 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो 24 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, so we can say that 24 6 से भी डिवाइड होगा. So 6 के टेबल में 24 yes आता है up to 4 times. Okay, now move for divisibility by 7. Student, divisibility test for 7 is a little bit longer, not complicated. थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर नंबर्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है. जस्ट लिसन एंड वॉच केयरफुली, इट इज़ वेरी इजी. डिविजिबिलिटी बाई 7 के लिए क्या करना है? वी आर हैविंग अ नंबर 672. तो डिविजिबिलिटी बाई 7 के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? वॉट एवर द नंबर वी आर हैविंग, उसका जो यूनिट प्लेस होता है उस यूनिट प्लेस को अलग कर लेते हैं और बाकी के नंबर्स को अलग कर लेते हैं. मतलब नंबर के दो पार्ट्स कर लेंगे. इन द राइट पार्ट ओनली यूनिट डिजिट विल कम एंड इन द लेफ्ट पार्ट द रिमेनिंग डिजिट विल गो. ओके, सो नाउ इन द राइट पार्ट ऑफ द नंबर वी आर हैविंग 2. अब राइट पार्ट में यानी कि यूनिट डिजिट में जो भी डिजिट, यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट आती है उसका डबल कर दीजिए. 2 का डबल क्या होगा? 4. ओके, अब लेफ्ट साइड पे जो भी डिजिट्स बच रहे हैं उन डिजिट से मिलके जो नंबर बन रहा है उस नंबर को भी लिख लीजिए, और लेफ्ट साइड पे बचे हुए डिजिट से जो नंबर बना उस नंबर में से जो हमने यूनिट डिजिट का डबल निकाला है उसको माइनस कर दीजिए. द रिजल्टेंट डिफरेंस
if the resultant difference is divisible by 7 means the whole number is divisible by 7. So यहाँ पे 672 था मेरे पास, 672 में से जो यूनिट डिजिट है मेरी, ठीक है, वो क्या है 2, 2 का डबल किया आया 4. अब यूनिट डिजिट के अलावा यहाँ पे जो डिजिट्स हमारे पास बचे वो है 6 और 7, 67 बन गया नंबर. 67 में से इस यूनिट डिजिट के ट्वाइस को हम माइनस कर देंगे. सो एज अ डिफरेंस हमको मिलेगा 63 एंड 63 is divisible by 7. So we can say that 672 is also divisible by 7. देखिए वही लिखा हुआ है, डबल 2 is 4, मतलब यूनिट डिजिट पे जो प्लेस थी उसको डबल किया तो 4 मिला. Now 67 is the number made by other digits. यूनिट डिजिट के अलावा जो डिजिट बच रहे हैं उनसे जो नंबर बना वो है 67. अब 67 में से यूनिट डिजिट के डबल को माइनस किया तो हमको मिला 63. 63 को हमने 7 से डिवाइड करके देखा एंड इट इज डिविजिबल बाय 7. So we can say that the number 672 is also divisible by 7. Okay, so 7 के लिए आपको यही करना है. Now let's move for divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the last 3 numbers are divisible by 8. कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको 8 के साथ करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, ओनली ट्राई टू डिवाइड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ दैट नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय 8. इफ द लास्ट 3 digit of a number is divisible by 8, it means the whole number is divisible by 8. See here, we were having an example 9808. Last 3 digit was 808. I tried to divide 808 by 8 and it is divisible by up to 101 times. So we can say that 9808 is also divisible by 8. 8 के लिए आपको जैसा हमने 4 में किया, लास्ट 2 डिजिट को चेक किया, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करेंगे. Okay, now let's move for 9. A number is divisible by 9 if the sum of the digits of the number is divisible by 9. Now remember the divisibility rule of 3. 3 में क्या किया था, हमने एक एग्जाम्पल लिया था 123 एंड उसको चेक किया था कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. तो कैसे चेक किया था, इनके डिजिट्स का सम निकाला था. 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 और 6 जो है 3 से डिवाइड हो गया था, तो हमने कहा कि 123 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ये सेम प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है 9 के लिए. ठीक है, 9 के लिए भी आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स of the number. If the sum is divisible by 9 means the number is also divisible by 9. See here we are having example 495. So 4 + 9 + 5 करेंगे, क्या आएगा 18. Is 18 divisible by 9? Yes, up to 2 times. So we can say that 495 is also divisible by 9. Okay, the last rule for this session is divisibility by 11. Divisibility by 11 के लिए क्या करना होता है, हमको alternative digits के sum को alternative digits का sum करना है पहले. ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 1364. ऑल्टरनेटिव डिजिट्स यानी कि एक एक प्लेसेस को छोड़ के, यानी कि स्किप काउंटिंग जो करते हैं वैसा. ठीक, सो 1 3 6 4 वी आर हैविंग टोटल 4 प्लेसेस, मीन्स टोटल 4 डिजिट्स. अब ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का इनमें सम निकालना है, तो वेरी फर्स्ट डिजिट, देन स्किप करना है सेकंड को, आ गए थर्ड पे. ये हो गए ऑल्टरनेटिव डिजिट, यानी एक छोड़ के दूसरा, एक एक का गैप लेके. सो ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का प्लस करना है. सो 1 + 6 इज इक्वल टू 7 एंड 4 + 3 इज इक्वल टू 7. अब ये जो ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का हमको सम मिला, इनको माइनस करना है. ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का जो सम आएगा उसको माइनस करना है. ओके, अब माइनस करने के बाद अगर आंसर जो है वो 0 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है, मीन्स ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम निकालेंगे. ऑल्टरनेटिव डिजिट का सम निकालने के बाद उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है.
अगर जो डिफरेंस है वो 0, 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, इन तीनों में से कोई एक आंसर होता है, इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो यहाँ पे देखिए 1364 के ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम आया 7 and 7. 7 minus 7 किया, सो वी गॉट 0. ओके, सो एज पर द कंडीशन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इधर 0 और 11 या फिर एनी मल्टीपल ऑफ 11. सो यहाँ पे मुझको मिल गया 0. इट मीन्स वी कैन से दैट 1364 इज डिविजिबल बाय 11. ओके, सो student, I hope you all understood what I have explained you. Stay tuned with me. Don't forget to like, share and subscribe my channel if you like the video. Stay tuned with me. Have a nice day. Thank you.